मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, एक बार पढ़िए फिर आगे बढ़ते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल की जवां हूँ। आ जाओ जी। You have a very good question in front of you and we are just going to solve it. According to question, a sum of rupees 12,800 is invested in two parts. On first part, the rate of interest is 15% per annum, and on second part, it would be 12% per annum interest, simple interest. And the total interest in the end of third year is 5085. Then he is asking about the part that is invested at 15% per annum. That is your question. So my dear students, I will explain you in two ways. First one is in detail part by taking it x and something else. So let's take x rupees is invested at the rate of 15% for 3 years, and the remaining, so total amount is 12,800, and from it x rupees is invested at 15% for 3 years, and the remaining 12,800 minus x is invested at 12% for 3 years, and the total interest gained from both of them is 5085. You have to find the value of x because you invested 15% rate for x. So my dear student, you can solve it by detail in this way. If you want to solve it in by digital sum, it would not be possible to solve it. Why it not be possible? Because 15 into 3 45 digital sum is 0. Again 12 into 3 36 digital sum is 0. And 5 5 10 and 8 18 digital sum is 0. So you cannot determine the digital sum of x due to of this 0, because whatever be the digital sum of x, when it multiplied with 0, it automatically becomes 0. Okay, so it is quite difficult for us to get it by digital sum. If you want to solve it by some other technique, you can choose any option from it and solve it by this way. How would you solve it? Let's take, if I would take 5200 first option. If I take 5200 means its unit digit is 2. If its unit digit is 2, so I make it multiply 3 5 ja 10, 10 2 ja 3 5 ja 15, 5 5 2 ja 10 means its unit digit is 0. So it is very much sure that its unit digit must be 5. Only in that case its unit digit will be 5. Okay, so here unit digit is 3 2 ja 6, 3 2 ja 6. So 5200, if we subtract 5200 from 12,800, is unit digit is also 6, so there is no chance to make it 5. So this option is cancelled. Is that quite okay? In the same manner you have to solve it. Okay, that is one way. Now we are going to discuss it by other way. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब आ जाओ देसी तरीके में। पल दो पल की जवानी है, पल दो पल की कहानी है। देखिए यार, कुत्ते बिल्ली वाला सवाल आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा, और जब कुत्ते बिल्ली वाला सवाल आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा तो वहाँ खतरनाक तरीके से पढ़ा होगा। उसी को मैं समझा रहा हूँ। कह रहा भैया 12,800 रुपए को दो हिस्सों में इन्वेस्ट किया। एक जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, मान लीजिए एक हिस्सा ए, उसका नाम है, उस पर इन्वेस्ट है 12%। एक दूसरा हिस्सा है बी, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है जी 15%।
तो हम कह देंगे जी 12% तो है ही, 3% फालतू है ना। और कह रहा है कि भैया 5,085 रुपये ब्याज बना है, कितने साल का जी? 3 साल का। तो 1 साल का कितना बनेगा? तो 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 निम 27, 3 5 15, 1695। तो 1 साल का ब्याज बना 1695। देखिए आपको कुत्ते बिल्ली वाला मेथड आना चाहिए जो हमने परसेंटेज में पढ़ा है ना। देखिए यार, अब हमने ऐसे पढ़ा हुआ था वहां पे कि मान लिया करो यार, पूरे पे ही अगर 12% इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 12,800 का 12% निकालोगे, 12,800 का 12% निकालोगे। मैं इसका सोट भी बताऊंगा कि कैसे तुरंत करें। तो करोगे, 2 जीरो कटा 12 7 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 एकम 12 और 3 15, 1536। इज दैट क्वाइट ओके? आइए भाई, 12 7 12 8 96, 12 दूनी 24 और 9 33, 12 एकम 12 और 3 15, 1536। यानी इंटरेस्ट है 1536। 15 में से 6 गया 9, है ना, और 8 में 3 गया 5, 6 में 5 गया 1, 159। तो ये 159 यूनिट फालतू किसकी वजह से आया? 3% की वजह से। तो जो 20 रुपए होगा उसका 3% जो हिस्सा होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है 159 को। तो 3 5 15, 3 3 9 53। तो बी की वैल्यू आएगी 5300। ये कुत्ती बिल्ली वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, बट इस तरीके से भी जाने में आपको काफी समय लगेगा, एटलीस्ट 20 से 22 सेकंड। बचाएंगे नीरज भाई, बचाएंगे। और मैंने एक चीज नोटिस भी की कि 2019 में सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन मोस्टली ऐसे थे जिनमें डिजिटल सम नहीं लगा। साथ ही सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन में कैलकुलेशन अच्छी खासी फंसा के दी। बच्चा इसे आसान समझता है, उसने कैलकुलेशन ही डिफिकल्ट बना दी। देखो यार दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि पेपर में कैसे करें। अगर मैं यहां स्टूडेंट होता तो मैं इतना डिटेल नहीं जाता, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट पे घूमता, ठीक है, और कैसे घूमता उस पे आज। देखिए यार, यहां तक की कहानी थी, इससे आगे टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो ऐसी कोई चीज ही नहीं थी जिसमें आपको कुछ लिखना पड़े, समझना पड़े। ये बस एक कैलकुलेशन थी। 5,085 का 3 साल का इंटरेस्ट है तो 1 साल का इतने का। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि इसका अर्थ ये हुआ कि अगर पूरे पे 12% इंटरेस्ट हो तो भाई 12,800 का 12% निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 2 8 16 यूनिट डिजिट बना 6। भाई 2 जीरो तो कट जाएंगी परसेंट से। तो यहां जो भी वैल्यू आएगा उसका यूनिट डिजिट 6 आएगा। तो 15 में से 6 गया 9। तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के, हम ये कहेंगे कि जी बी का 3% जो एक्स्ट्रा है वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है इस वैल्यू को। अब हम ऑप्शन में देखेंगे कि 3 से गुना करके बी की किस वैल्यू को यूनिट डिजिट 9 बन सकता है। तो देखो, 3 दूनी 6 नहीं बनेगा, 3 5 15 नहीं बनेगा, 3 8 24 6 नहीं बन रहा। लेकिन यहां से 3 तिया 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, सॉरी 9 बनाना था तो 3 तिया 9, तो सीधा 5300 आंसर दिखाई दे रहा है ना? सीधा 5300 आंसर यहां से दिखाई दे रहा है। क्लियर है भाई? आइए करो जी। इतनी शैतानी करने लग गया है सवाल में कि मत पूछो आप।
देखिए यार, कह रहा है ए ने 2 वर्षों के लिए बी से 8% साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया। तो 8% की रेट से 2 साल में ब्याज कितना बन गया भाई? 16%। और कहता है 1,91,864 रुपए कुल मिला के चुका दिए। 1,91,864 रुपए कुल मिला के चुका दिए। तो 16% ब्याज हुआ, तो जो भी प्रिंसिपल होगा तो 100% तो वो खुद होगा और 16% ब्याज, यानी कुल मिला के 116% इसका उतारना होगा। हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों में इसे डिजिटल सम से करूं यहाँ पे, तो 6 और 1 7 और 1 8 आया। यहाँ करूँ तो 9 से 9 कटा, 8 और 1 9 कटा, 6 4 10 और 1 11 2 आया। अब देखूंगा कि किस से गुना करके 2 बन रहा है। तो अगर यहाँ बात करें तो भैया 9 कटा, 8 और 1 9 कटा, 6 2 8, 8 8 64 तो नहीं बनेगी बात, यानी ये वाला तो गलत है। यहाँ आते हैं, देखिए 5 4 9 बना, 6 6 12 और 1 13, 13 का 3 और 1 4 बना, 4 8 32 2 नहीं बना, ये भी गलत है। यहाँ आते हैं जी, 4 4 8 और 1 9 9, 6 और 2 8, ये भी नहीं बनेगा। यहाँ बात करते हैं जी, 5 और 4 9, 6 और 1 7, 7 8 56, 56 6 और 5 11 2 बन रहा है, तो डी आंसर हो गया। है ना। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना होगा और इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। देखिए यार, यूनिट डिजिट हमेशा ही आसान उत्तर देगा और सबसे जल्दी देगा। अगर मैं इस सवाल को यूनिट डिजिट पे जाऊं तो मुझे ये देखना है कि यार जो भी मेरा प्रिंसिपल होगा उसे 6 से गुना करना होगा, तो आखिरी डिजिट मेरा आना चाहिए 4। अब आप बताइए 6 को किससे गुना करेंगे? 4 है, 6 का पहाड़ा पढ़ लो, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, यानी 4 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 नीम 54, या यूनिट डिजिट 9 हो, यानी जो भी मेरा आंसर होगा उसका आखिरी डिजिट या तो 4 होगा या 9 होगा। यहाँ 2 है, आंसर ही नहीं होगा, 2 है, आंसर ही नहीं होगा, 4 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब फंस गया। अब मैं डिजिटल सम लगा लूंगा तो दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरे 2 ऑप्शन तो कट ही गए ना। अब डिजिटल सम लगा लूं, क्योंकि यूनिट डिजिट का सबसे बेहतरीन तरीका है और वहां मैं फंस चुका हूं कि बी और डी में से कोई एक आंसर लिया जाएगा। अब मैं डिजिटल सम लगाऊंगा, 6 और 1 7 और 1 8, और यहाँ 9 कटा, 8 और 1 9 कटा, 6 4 10 और 1 11, 2 यूनिट डिजिट आया। किसी भी एक को चेक कर लेता हूं, तो 5 4 9 हो गया, 6 6 12 और 1 13, 13 का 3 और 1 4 आया, तो 4 8 32 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये आंसर नहीं है, तो ऑटोमेटिकली डी आंसर लग जाएगा। क्लियर है। यानी कैलकुलेशन की जो परसेंटेज है वो कम से कम हो जाती है इस तरीके से। करिए जी। पल दो पल की कहानी हो। देखो यार दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत संबंध आपको दिखाई दे रहा है क्या, कि ऑप्शन में इतना डिफरेंस है ना कि मतलब मजा आ जाएगा आप सवाल देख के। अब आता है, कहता है 8.25% की रेट से 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। भाई गुना करो, 8 तिये 24 और 25 तिये 75, यानी 24.75, यानी कुल मिला के जो इंटरेस्ट बनेगा वो 24.75% बनेगा। किसी भाई को दिक्कत है? नहीं। अब हमें ये दे रखा है कि जी प्रिंसिपल है 2,64,000। अगर बेटा प्रिंसिपल 2,64,000 है तो इसका जो ब्याज बनेगा वो 24.75% बनेगा, 24.75% बनेगा। तो चाहो तो इसका गुना में 24.75 कर लो। देखिए यार, यहां से मैं चाहूं तो अब इसे डिजिटल सम से निकाल दूं या किसी से भी, लेकिन मैं एक दिमाग दौड़ा रहा हूं कि ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि एक बार कोशिश करते हैं। मान लो या 24 की जगह अगर 25 लिखा होता, भाई 24.75% हो या 25% हो, मान लो या 25% लिखा होता दोस्त, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। इसका 1/4 करोगे तो 4 छिक 24, है ना, और 4 छिक 24, यानी उत्तर लगभग 66,000 के आसपास आएगा। आगे तो 0 0 है। अब 66,000 के आसपास ना ये है ना ये है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, केवल यही है, तो ये आंसर हो गया, है ना। यानी डोंट बी अपसेट अबाउट दिस डाटा,
आप ऑप्शन देखिए और उड़ा दीजिए। आप कहें डिजिटल सम तो डिजिटल सम से भी कराता हूं। पल दो पल की कहानी है। आ जाओ। देखिए 6 4 10 2 12 3 आया, 7 2 9 5 4 9 0, उड़ा दिया मैटर। जिसका जीरो आएगा वही आंसर। देखिए जी 5 4 9 6 3 9 0, ये भी ठीक है। 7 2 9 8 और 1 9, ये भी ठीक है। देखो कितना हरामी है पेपर वाला, उसको पता है साला बच्चा सब डिजिटल सम अप्लाई कर रहा है, इसका भी जीरो है। यहाँ देखोगे तो 5 4 9 6 3 9, लगा ले बेटा किसका डिजिटल सम लगाएगा तू, लगा, फंसा के बैठा देगा। कर लो क्या करोगे, अब बताओ क्या करें भाई। देखिए मैं अब जब क्लास ले रहा हूं तो उससे पहले मैं पूरा पढ़ रहा हूं चीजों को एक एक को, और मैं ये देख रहा हूं कि पूरी शैतानी कर रहा है वो, उसको अच्छे से पता है कि बच्चा डिजिटल सम पे जाने लग गया है। तो कुछ सवालों में तो डिजिटल सम सेट होता है, लेकिन कुछ सवालों में वो ऐसे ऑप्शन बना देता है कि बेटा 4 रो में ही क्या, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कराएगा ही कराएगा 2 3 में तो। अब इसमें देखो 4 रो पे डिजिटल सम जीरो ला दिया। तो भाई मेरे वो बहुत चतुर हो गया है, इसलिए आपको उससे डबल चतुर बनना पड़ेगा। 3 इडियट में था ना एक चतुर सिंह, वैसे बनना पड़ेगा तो। आओ आ गया चतुर रामालिंगम, करो जी। कहता है सम एट ए सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम 7/5 ऑफ इट सेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। भाई 8% की फ्रैक्शन निकालो क्या होती है, 4% 1/25 तो 8% 2/25। कहता है कोई धन कितने साल में अपने आप का 7/5 गुना हो जाएगा। तो करो क्या कि बेस 25 बना लो। तो भाई 7/5 को आप 35/25 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। और सवाल में यही तो पूछ रहा है कि कितने सालों में ये धन 35/25 गुना हो जाएगा। 7/5 का मतलब 35/25 गुना हो जाएगा, मतलब प्रिंसिपल 25 है, प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट हो जाए कितना, 35। यही तो कह रहा है ना। तो अगर 25 से 35 आपको करना है मेरे बच्चों, तो कितना ब्याज कमाना पड़ेगा, 10 यूनिट ब्याज कमाना पड़ेगा। और रेट है 8%, 8% की फ्रैक्शन का मतलब है 2/25। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मेरे बच्चों प्रिंसिपल 25 है, इसका मतलब मेरे बच्चों ये हुआ कि प्रिंसिपल 25 है तो इसका 8% हुआ जी 2। प्रिंसिपल 25 है तो इसकी रेट 8% हुई 2, यानी 25 पे 1 साल का ब्याज 2 है। अगर मेरे बच्चे 25 पे 1 साल का ब्याज 2 है, या 2 यूनिट इंटरेस्ट कमाने में 10 साल लगते हैं, तो 1 यूनिट ब्याज कमाने में कितना, सॉरी 2 यूनिट ब्याज कमाने में 10 साल, अरे यार गलत बोल रहा हूं, 2 यूनिट ब्याज कमाने में भाई रेट 8% मतलब 25 पे 1 साल का ब्याज 8% से 2 होगा। तो 2 यूनिट ब्याज कमाने में 1 साल, तो 10 यूनिट ब्याज कमाने में कितने साल, 5 साल। दैट इज योर आंसर। हाँ है ना, करो जी।
और दोस्तों कह रहा है कि निश्चित धनराशि पर 15% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज 72 है। तो बेटा एक सिंपल सी बात होता है, 15% की रेट से 3 साल का ब्याज कितना बना? 45%। इसका मतलब जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 45% 7200 रुपए। हाँ है ना? 45% अगर मैं तुक्का लगाऊं नजदीक से तो 50% लगा सकता हूं कि भाई ये 50% है। हाँ है ना? तो अगर 50% 7200 है तो 100% होगा आपका 14,400, है ना? और ये 45 यानी आपका उत्तर 15,000 के आसपास होना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका 50% तो 12,000 हो जाएगा, ये तो 16,000 आ जाएगा, और इसका 50% 24,000 आ जाएगा। तो केवल एक ऑप्शन बचा ए। दिमाग दौड़ाना ही नहीं है। हाँ है ना? बात समझ रहे हैं ना? बिल्कुल निशांत बेटा, बहुत बढ़िया, यू आर वेरी गुड बॉय। करो जी। देखिए यार दोस्तों, कहानी ये है, मैं अगर इस क्वेश्चन को डिटेल बताऊं पहले आपको, क्योंकि जब भी रेट सेम होती है तो एक कॉन्सेप्ट घूमता है, वो कॉन्सेप्ट घुमाते हैं। कह रहा है दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्षों के लिए 8400 रुपये उधार दिए, यानी 8400 रुपये 15 सालों के लिए दिए आपने, रेट 8% से 15 सालों के लिए दिए। हाँ है ना? और कह रहा है करीम ने उसी दर पर 14 वर्षों के लिए 5100 रुपये उधार दिए। 5100 रुपये 8% की रेट से 14 सालों के लिए उधार दिए, और दोनों से उसे जो ब्याज मिला है वो 17,17,66 मिला है। तो कह रहा जी रेट निकाल के बताओ क्या होगी। यही बात है दोस्तों, अगर मुझे इस सवाल को डिजिटल सम से करना पड़े तो कैसे करें देख लेते हैं। पल दो पल की कहानी है। 8 4 12, 12 का मतलब हुआ 3, 5 3 15, 15 का हुआ 6, 6 3 18, डिजिटल सम आ गया 0। 5 और 1 6, 4 और 1 5, 5 6 30, डिजिटल सम आ गया 3। बात समझ रहे हैं ना? तो भाई इसका डिजिटल सम 3 है, इंटू आर बराबर ये आना चाहिए। यहां डिजिटल सम 0 आ ही गया। यहां बात करें तो देखिए 7 7 14 और 6 20, 6 26 और 1 27, इसका डिजिटल सम 0। अब हमें ये तो डिजिटल सम 0 आ ही चुका है, अब 3 इंटू आर इक्वल टू 0 आना चाहिए डिजिटल सम। तो देखिए यार, इसका 5 बनेगी नहीं, क्योंकि 0 लाने के लिए या तो ये मतलब 9 का मल्टीपल बने या 0 बने। 10 लेंगे तो 1 आएगा, 1 3 3 नहीं बनेगा। 5 और 1 6 3 18, ये बन सकता है, ये आंसर है। और 9 3 27, ये भी आंसर है, यानी आप ऑप्शन में फंस जाएंगे। डिजिटल सम से ऑप्शन जाने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत बनेगी ही बनेगी। क्लियर है दोस्तों? तो एक तो तरीका है मेरे बच्चों ये। अब पकड़ते हैं दूसरी बात, एक बार फिर से इस बात को समझो, फिर आगे बताता हूं, क्योंकि 10.5% डिजिटल सम को खराब कर दे रहा है।
कर पाए भाई? अब देखो यार, इसमें डिजिटल सम से तो फंस गए ना हम इसमें बाबू। अब डिजिटल सम से फंस गए तो ये तो पता चल गया कि ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इन दोनों में से किसी एक को ट्राई कर लो। या ये क्या था, 17,666, किसी एक को ट्राई कर लो। अगर वो सेट हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरे वाला फिर आंसर आ जाएगा। हाँ है ना? जैसे मान लीजिए मेरे लिए रेट 9% लेनी आसान है, तो मैं यूनिट डिजिट पकड़ता हूँ यहाँ पे। तो भैया 5 चौक 20, 20 को 9 से गुना करेंगे, यानी यहाँ का यूनिट डिजिट तो आ जाएगा 0। क्लियर है? अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ का यूनिट डिजिट क्या आएगा। पक्की बात है ना, अगर मैं रेट 9% लेता हूँ तो 5 चौक 20, इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 0। बिल्कुल सही। अब इसका यूनिट डिजिट पकड़ते हैं। तो भैया 4 एकम 4, ये था तो 17,766। तो अगर इसकी रेट 9 ले लेते हैं तो देखो 4 एकम 4, 4 नीम 36, यूनिट डिजिट आ रहा है 6, और 0 में 6 जोड़ेंगे, यूनिट डिजिट 6 बन रहा है, यानी ऑप्शन डी सेट हो रहा है। क्लियर है? यूनिट डिजिट के मेथड से ऑप्शन डी सेट होने लग रहा है। आप कहें जी बी भी तो सेट हो सकता है, नहीं होने का। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ 5 आ गया तो इसका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या 0 होगा। इसका यूनिट डिजिट या तो 5 होगा या 0 होगा, और 5 में 0 जोड़ो या 5 में 5 जोड़ो, किसी भी सूरत में यूनिट डिजिट 6 नहीं आएगा। क्लियर है भाई? आइए जी नेक्स्ट पे करो भैया सोल्व। आओ जी दोस्तों। कहता है जी 3100 रुपए साधारण ब्याज पर उधार दिए जाता है। कहता है एक भाग 8% की दर से और दूसरा भाग 6% की दर से दिया जाता है। 3100 रुपए को 2 हिस्सों में इन्वेस्ट किया जाता है। तो देखो यार, तो कह रहा 8% की रेट से कितना पैसा इन्वेस्ट हो। 3100 रुपए भाई ध्यान देना। कहता है एक हिस्सा 6% पे इन्वेस्टेड है, दूसरा 8, तो 8 को लिख लेते हैं 6 जमा 2, कुत्ते बिल्ली वाला। हाँ है ना? और कह रहा है जी एक साल में कुल मिला के जो ब्याज मिल रहा है भाई वो 212 रुपए मिल रहा है। सेटा मामला। कितना रुपए मिल रहा है जी? 212 रुपए। किसी भाई को दिक्कत? तो आप यूनिट डिजिट का फंडा अपनाइए। इसको थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं। 6% जमा 2%, ये मान लो बी हिस्सा, ये ए, और हमें बी ही निकालना है। तो पूरे पे ही 6% ले ले मेरे बच्चे। तो आप जानते हैं पूरे पे 6 लेंगे तो 6 कम 6, यूनिट डिजिट आ जाएगा कितना? 6। और 12, 2 में से 6 गया, 2 सॉरी 6 बचेगा। अब मुझे ये देखना है कि बी का 2% 6 आना है, बी का 2% 6 आना है। तो बी का यूनिट डिजिट 2 से गुना करके 6 आना चाहिए, ऐसा देखता हूं। तो 2 एकम 2, ये तो आ नहीं रहा। 2 5 10, 2 दूनी 4, ये भी नहीं आ रहा। 2 3 6, ये आने लग रहा है। 2 चौक 8, ये भी नहीं आ रहा। तो सीधा सीधा टिक कर दो कि जो प्रिंसिपल है जो 8% की रेट पे इन्वेस्ट है वो कितना है जी? 1300 रुपए। ठीक है? आप चाहें तो इसका डिजिटल सम से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिजिटल सम से भी जा सकते हैं। जी सुनील जी,
but it will totally depend on your opinion. How do you react on it? For my opinion, I always prefer unit digit method. If it not should, then I will go to digital sum. And if both these methods are not working on any question, then without any delay, I just do the calculation. Because sometimes we are wasting our time just to get the shortcut of that question, and we just have wasted the time around 10 to 15 seconds to get the shortcut, and still we doesn't find the shortcut. So in that type of specific situation, we lost 20 seconds. Instead of losing 20 seconds, you can practice it by calculating, and I think you can solve it by within 20 seconds. आइए जी, कहता जी कोई धन 3 साल में 840 और 7 साल में 1200। बड़ा आसान सवाल है यार। 3 साल से 7 साल मतलब अगले 4 साल में 840 से 1200 हो गया, तो कितना ब्याज बना? 200 यहाँ और 160, यानी 360 रुपये ब्याज बन गया भाई। कितने साल में? 4 साल में। तो बाबू मोरे 1 साल का ब्याज बन गया जी 90 रुपये। अगर 1 साल का ब्याज 90 रुपये बना है, 1 साल का ब्याज 90 रुपये बना है, तो कह रहा है जी मूलधन बताओ। तो यार एक बताओ, 1 साल का ब्याज 90, तो 3 साल का ब्याज कितना हुआ? 270, हाँ है ना। तो 840 में 3 साल का सिंपल भी शामिल और प्रिंसिपल, तो सिंपल हटा दो, तो प्रिंसिपल 14 में 7 गया 7। जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 7 है, 570, 670, 16 ही कर लो भाई। तो 6 में से 2 गया ना, सॉरी क्या था, 14 में से 7 गया 7, 7 में से 2 गया 5, तो 570 आंसर है, बी ऑप्शन। क्लियर है जी? पल दो पल की जान, करो जी। कहता साधारण ब्याज की दर पर 10 सालों के लिए कोई धन उधार दिया जाता है 130% की रेट से। मतलब 10 सालों में कोई धन 130% हो जाता है। एक व्यक्ति ने 10 वर्षों में 9500 रुपये के मूलधन का 130% साधारण ब्याज प्राप्त किया। मेरे बच्चों बड़े ध्यान दो, 130% सिंपल इंटरेस्ट हुआ है कितने साल में? 10 साल में। तो इसका मतलब 1 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट हुआ? 13%। बस आंसर। पहले बेहद ही आसान सवाल रहते थे, 2019 में शैतानी करनी शुरू की है। बताइए जी। देखो यार दोस्तों, अगर मुझे इस क्वेश्चन को डिटेल करना हो तो मैं इस तरह से समझाऊंगा कि मान लो बेटा प्रिंसिपल है P, प्रिंसिपल है P, ठीक है जी। इस P रुपए पे R% की रेट से 7 साल 8 महीने, तो 8 महीने के साल बनाएंगे तो 12 2/3, तो 7 सही 2/3 साल, यानी 3 7 21 और 2 23/3 साल। 23/3 साल का साधारण ब्याज इतना बना। और कह रहा है जी कि 7 साल 8 महीने बाद जो राशि है, जो अमाउंट है वो डबल हो जाती है। तो प्रिंसिपल P है तो अमाउंट हो जा रहा है 2P। हम लेंगे जी, सोल्व करेंगे, P की वैल्यू निकाल देंगे, नथिंग डिफिकल्ट। लेकिन अगर मैं समझदार हूं तो मैं देख रहा हूं कि ऑप्शन कितना दूर दूर दिया है, यानी वो चाह रहा है कि तू खेल ऑप्शन से बेटा। तो जब ऑप्शन से खेलोगे तो आपको ये पता है कि यार कोई चीज डबल हो गई, मतलब अगर कोई चीज 100 थी तो हो कितनी गई? 200। 200 हो गई तो मतलब ब्याज कितना बना? 100। यानी 100 पे कोई चीज परसेंटेज, मतलब ये जो रेट है ये 7 साल 8 महीने में 100% हो गई। इसका मतलब ये है कि जो भी रेट है उसका लगभग 7 गुना। भाई
वैसे तो 7 साल 8 महीने का मतलब बना 7 सही 2/3 गुना, लेकिन मैं कह रहा हूं ऑप्शन इतना दूर दूर दे रखा है, सिर्फ 7 गुने ही को पकड़ लो कि जो भी रेट का आंसर होगा उसको 7 से गुना करने पे उत्तर लगभग 100% आ रहा होगा। हाँ है ना। 18 7 126, ये तो 126 चला गया। 26 7 तो आप जानते ही बहुत बड़ा चला गया। 30 7 तो गजब ही चला गया। तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन बचा था, क्योंकि 13 7 91 यही एक ऐसा तुक्का था जो 100 से छोटा बैठ रहा था। हाँ है ना। और अभी 2/3 गुना और करना था, तो सीधा तुक्का लगाओ, बी पे आंसर आ जाएगा। करिए जी। सेम ऐसा ही सवाल यहां है। कह रहा है जी 5 साल 4 महीने में क्या हो जा रहा है जी 3 गुना, मतलब 100 से 300 हो जा रहा है। अगर 100 से 300 हो रहा है तो ब्याज कितना बना 200, तो यानी 200% आंसर आना चाहिए 5 साल 4 महीने। मतलब तुक्का लगाओ कि जिसका 5 गुना 200% आ रहा हो वही आंसर। तो यार ये 5 3 15, ये तो मतलब ही नहीं, 5 चौक 20, ये तो 200 के आसपास, ये तो आंसर ही नहीं। अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 200 ही तो लाना था मुझे, सॉरी 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 सॉरी, मुझे 200 लाना था। तो देखो 18 पांजे करूंगा तो 90 आ जाएगा, मुझे चाहिए 200, ये तो आंसर है नहीं। ये 30 भी होता, अगर यहाँ पे 30 भी होता तो 30 पांजे 150 होता, ये भी मेरा आंसर नहीं था। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों एक बात बताओ, मैं इसको करूंगा तो ये तो 200 से फालतू चला गया, यानी इसका 5 गुना ही 200 से फालतू चला गया, जबकि मुझे तो 5 गुने से थोड़ा ज्यादा गुना करना था, तो ये तो 5 गुना ही ज्यादा चला गया। तो इसका मतलब केवल और केवल यही आंसर है, क्योंकि 5 गुने से थोड़ा ज्यादा करेंगे तो ये 200% बन जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 37.5%। हाँ है ना। अगर आप कहें कि सर एग्जैक्ट निकालना है, तो भैया ये बताओ 5 साल तो हो ही गए, और 4 महीने का कितना बना, साल बनाओगे 12, 1/3, तो 5 3 15 और एक 16/3। तो जिस भी चीज को 16/3 से गुना करके 200 आता हो वो आंसर है। तो इसे 16/3 से गुना करो, आंसर आ जाएगा 200। ठीक है बेटा, चला दे इसे, करिए जी। आइए जी। कह रहा जी एक आदमी किसी निश्चित राशि को 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है। 15 वर्षों में संयोजित ब्याज की राशि उधार दी गई राशि से 250 रुपये कम हो जाती है। तो भाई ये बताओ 5% की फ्रैक्शन क्या बनी। तो आप कहोगे जी 5% की फ्रैक्शन बनी 1/20। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रिंसिपल 20 है तो 5% की रेट से 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाएगा जी, 20 रुपये प्रिंसिपल पे 5% की रेट से 1 साल का ब्याज बन जाएगा 1। तो 15 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा जी, 15। हाँ है ना। यानी अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो 5% की रेट से 15 सालों का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 15। तो मैं इस बात कैसे कह सकता हूं कि इस प्रिंसिपल पे 5% की रेट से 15 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो इस प्रिंसिपल से कितना कम है जी, 5 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कितना कम है जी, 250। तो 5 यूनिट 250, तो 1 यूनिट 50। तो पूछा क्या, उधार दी गई राशि, तो 20 गुना 50 करोगे, उत्तर आ जाएगा 1000। उत्तर आ जाएगा मेरे भाई 1000। समझ रहे हो, बताओ जी।
आओ भैया, क्या कहानी है? कह रहे जी 26,100 रुपये को 2 हिस्सों में बांट दो, राम और श्याम में। इस तरह से बांट दो कि राम को जो पैसा मिला वो 3 साल में और श्याम को जो पैसा मिला वो 6 साल में डबल हो जा रहा है, मतलब बराबर सेम हो जा रहा है। देखिए जी, आ जाइए। कह रहा जी 26,100 रुपये को 2 हिस्सों में बांटा है। समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा जी एक हिस्सा दिया है राम को और दूसरा हिस्सा दिया है श्याम को। तो मान लेते हैं राम को आर दिया और श्याम को एस दिया। ठीक है भाई। सवाल में कह रहा है जी राम को R% की रेट से 3 साल में जो ब्याज मिला है वो श्याम को R% की रेट से 6 साल में जो ब्याज मिला उसके बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा सवाल आए जहां रेट सेम हो तो बेसिक रेट मत लो, क्योंकि अगर इंटरेस्ट इक्वल है तो वैसे भी कट जाना है, यानी रेशियो वही आ जाना 1:2। तो राम बटे श्याम का रेशियो आ जाएगा 2/3 ना 2/1, यानी राम का हिस्सा 2 होगा तो श्याम का हिस्सा 1, तो दोनों का हिस्सा 2 रेख 3। तो राम का हिस्सा निकालना है तो भैया 21,600 का 2/3 कर देंगे, ये मेरा आंसर है। 2/3 कर देंगे, ये मेरा आंसर है। ठीक है जी। आप कहें 3 7 21, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, जिस ऑप्शन का यूनिट डिजिट 4 हो वही आंसर, केवल यही है, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो बी ऑप्शन राइट है। करिए जी। देखिए दोस्त, कह रहा जी कोई प्रिंसिपल होगा, पी मान लेते हैं, इस पे इस रेट से 3 दूनी 6 और 2 8/3% रेट से कितना टाइम जी भैया? 4 दूनी 8 और 9/4 सालों का जो साधारण ब्याज है, भाई ये डिस्काउंट कह लें या सिंपल इंटरेस्ट कह लें, बात तो वही है, यानी P रुपए प्रिंसिपल पे इस रेट से डिस्काउंट है 78। तो कह रहा जी प्रिंसिपल बताओ। आप तो समझ ही गए होंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 6 से काटोगे 13, तो 13 से जो आंसर बन रहा होगा नहीं, ये आपका सीधा आंसर आ गया बिना कुछ सोचे समझे। आप कहें जी ऐसे मज़ा नहीं आ रहा, तो आओ तुम्हें मज़ा दे। अभी भी करना यही पड़ेगा कि भाई जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 3 दूनी 6 और 2 8/3% की रेट से 4 दूनी 8 9/4 साल, तो 4 दूनी 8, 3 तिया 9, तो रेट 6% निकल के आई, यानी जिस भी प्रिंसिपल जो भी आंसर होगा उसका 6% 78 होगा। तो 13 6 78 सीधा सीधा पता चलता है, तो 1300, यानी कुल मिला के घूम फिर के वही कैलकुलेशन है। करिए जी। आइए जी दोस्तों, कह रहे एक आदमी ने 12% पर एनम की रेट से साधारण ब्याज पर कुछ पैसा उधार लिया। 6 साल 8 महीने बाद उसने 720 रुपये दिया। तो देखो यार, ऑप्शन तो खैर दूर दूर है नहीं, नजदीक ही है, तो भाई सोल्व तो करना पड़ेगा। यानी 12% की रेट से 6 साल के लिए अगर उधार लेता तो ब्याज आ जाता कितना? 12 6 72%। हाँ है ना।
अब 8 महीने और तो 12% है पूरे 12 महीने की, तो 1 महीने की 1%, तो 8 महीने की 8%, तो 8% और जोड़ दो, तो यानी 6 साल 8 महीने की रेट हो जाएगी 80%। फिर से समझाता हूं भाई, 6 साल और 8% की बात हो, 6 साल 8 मंथ की बात हो रही है, तो भाई 12% की रेट से 6 साल में कितना ब्याज बना जी? 72%। और 12% पर साल है, यानी 12 महीने की 12%, तो 1 महीने की 1%, तो 8 महीने की 8%, तो टोटल 6 साल 8 महीने की जो रेट बनी वो 80% बनी। तो जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 80% 720 होगा। दिखाई दे रहा है 8 72, यानी 900 आंसर, 900 आंसर। बोलो भैया हाँ या ना, करो जी। देखिए यार, कहता है किसी निश्चित राशि पर 12.5 वर्षों में का साधारण ब्याज इस राशि का 3/4 है। ध्यान देना, इस राशि का 3/4 है, मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल 4 है तो सिंपल इंटरेस्ट 3 है, ऐसा कह रहा है। हाँ या ना, पक्का? तो 4 से 3 हो जा रहा है ब्याज कितने सालों में ना, कितना ब्याज बना, सॉरी किसी निश्चित राशि पर 12.5%, मतलब 12.5 सालों का साधारण ब्याज इस राशि का 4/3 है। सॉरी, इसका मतलब ये कि अगर प्रिंसिपल 4 है ना बेटा, अगर प्रिंसिपल 4 है तो साधारण ब्याज 3 रुपए हो जाता है कितने सालों में? 12.5 सालों में। 12.5 सालों में यानी 12 दूनी 24 और 25/2 सालों में। तो बेटा ये बताओ, 3 यूनिट इंटरेस्ट बनता है 25/2 सालों में, हाँ है ना? तो एक साल में कितना बना? 6/25। तो हम कह देंगे जी 6/25 यूनिट इंटरेस्ट बना है किस पे? 4 पे, तो 100 पे कितना, और रेट निकाल देंगे। दूसरी चीज एक और, अगर मैं पेपर दे रहा होता और मैं स्टूडेंट होता तो मुझे ये पता है कि ये रेशियो है, ये रेशियो है, और मुझे ये पता है कि 3 यूनिट इंटरेस्ट 12.5 सालों का है, तो मैं इस इंटरेस्ट को ऐसा डाटा बनाना चाहूंगा जो 25 से कट जाए। 12.5 का मतलब 25/2 से कट जाए। तो मैं क्या करता हूं कि इधर भी 25 से गुना कर देता हूं, इधर भी 25 से गुना कर देता हूं, यानी मैं मान लेता हूं कि प्रिंसिपल है मेरा 100, तो साधारण ब्याज बन गया 75। यानी अगर 100 यूनिट प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट बन गया 75, और 75 यूनिट इंटरेस्ट बना है कितने सालों में? 12.5 सालों में। 12.5 मतलब 25/2 सालों में। तो सोल्व करोगे ना भाई, तो 25 3 75, 3 दूनी 6, तो यानी एक साल में कितना ब्याज बना? 6, और 100 पे 6 का मतलब 6%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 6%। फिर से समझो, दोबारा बताऊंगा, पहले आप लेकिन एक बार समझो फिर बताता हूं। युद्धवीर भाई, इसमें क्लास नोट्स कौन कह रहा है प्रोवाइड नहीं हो रहा? डेली की डेली क्लास नोट्स प्रोवाइड होता है, आप नोट्स के सेक्शन पे जाइए और वहां पे मिलेंगे आपको क्लास नोट्स डेली की डेली। जी फिर से बता रहा हूं, एक बार आप पढ़ो ढंग से, फिर बता रहा हूं, टेंशन ही ना लो। आई एम विद यू, फॉर यू। ऑलवेज। आइए देखिए यार भाई, कहानी ये थी सवाल में, मैं पहले से डिटेल बताता हूं, शायद लैंग्वेज नहीं समझ पाए। कहता है जी कोई प्रिंसिपल है, मान लेते हैं पी प्रिंसिपल, कहता है जी इस पे रेट है R%, टाइम है 12 दूनी 24 और 25/2 साल, रेट बटे 100, टाइम था 25/2 साल। कहता है जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 3/4 गुना, यानी पी का 3/4 गुना।
ये सवाल कह रहा है जी इतना इंटरेस्ट बन गया, किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो देखो जी पी से पी काट दो, समझ गए? 25 चौको 100, 4 से 4 काट दो तो रेट आ गई 3 दूनी 6% डायरेक्ट। मैं क्या कह रहा था कि टाइम बनना था 12:30, 12:30 का मतलब हो गया कितना? 25/2। तो मैं ये चाह रहा था कि इस 3 को ऐसा नंबर बना लूं कि 25 से कट जाए। तो 3 तो बन नहीं रहा था, तो 25 से गुना कर दिया, तो इसे 100 बना दिया, इसे 75 बना दिया, यानी प्रिंसिपल 100 हो गया, ब्याज 75 हो गया। तो 75 ब्याज बना 25/2 साल में। तो एक साल में कितना? 25 × 75, 3 दूनी 6। तो 100 पे 6 रुपए ब्याज बना एक साल का, यानी रेट हो गई 6%। ठीक है, आप डिटेल जाए, कोई इश्यू ही नहीं है। पढ़िए जी अगला। आइए जी दोस्तों, करा x रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखी गई। यदि ये 3% अधिक दर पर रखी जाती तो 300 रुपए अधिक ब्याज हो जाता। देखिए यार, 3% अधिक पे रखी जाए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है, ध्यान देना, तो एक साल में 3 रुपए ज्यादा ब्याज बन जाता, जबकि टाइम कितना है? 2 साल। टाइम कितना है? 2 साल, हाँ है ना? तो अगर रेट 3% है तो एक साल में 3 रुपए फालतू ब्याज बनता, तो 2 साल में 6 यूनिट फालतू ब्याज बनता। जबकि कह रहा है 6 यूनिट फालतू ब्याज नहीं बना, 300 रुपए फालतू बना। तो एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू 5,000 रुपए। यानी अगर मूलधन आपसे पूछा जाता तो उत्तर देते 5,000 रुपए, और मूलधन हमारा एक्स था, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 5,000, लेकिन उसने पूछा 4x बताओ, तो 4x मतलब 4 गुना, यानी उत्तर आ गया 20,000। क्लियर है? किसी भाई को दिक्कत? कह रहा भाई कोई प्रिंसिपल था, अगर उस पर 3% फालतू रेट कर दें तो ब्याज 300 रुपए फालतू आ रहा है। कितने साल में? 2 साल में। तो आप ऐसे कर लो कि भाई एक साल में कितना फालतू आएगा? 150। तो 3% 150, तो 1% 50, तो 100% 5,000, यानी प्रिंसिपल 5,000 है। अब वो प्रिंसिपल का 4 गुना पूछ रहा है, यानी 5,000 गुना 4, यानी 20,000 उत्तर आ गया। हाँ है ना? नोट्स के क्वेश्चन सही से नहीं दिखते बेटा, फोटो ठीक खींचा कर नोट्स बना के। पीएनजी, अच्छा करो भाई। अच्छा, देखिए यार, कहानी मित्रों यह है कि तुषार ने 13 जनवरी 1987 को किसी महाजन से 15% प्रति वर्ष की दर पर 15% प्रति वर्ष की दर पर 12,000 रुपये उधार लिए, और अपना ऋण चुकाने के लिए 8 जून, ये दोनों ही बातें बहुत ही अति आवश्यक है, 8 जून 1987 और 13 जनवरी 1987 को वह राशि वापस लौटा दी। तो तुषार द्वारा अपना ऋण चुकाने के लिए महाजन को कितनी राशि अदा की गई होगी? मेरे दोस्तों, आप सिर्फ ये बता दो कि जनवरी से लेके जून तक कितने महीने हो गए, एग्जैक्ट मत निकालो।
तो आप कहोगे जी जनवरी पूरा लगा लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, 8 जून है तो वहां पे भी दिन छोटे, यानी 5 महीने हो गए, हाँ है ना। तो अगर पूरे साल की रेट 15% है तो 5 महीने की रेट कितनी बन जाएगी, बोलो भाई। 5 महीने की भाई 12 महीने की रेट 15% है, हाँ है ना। तो 4 महीने की रेट हो गई कितनी, 5%। तो 5 महीने की रेट लगा लो, 5.25 ना 6.25 के आसपास बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तुम 6% मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये बताओ कि 12,000 का 6% अगर मैं ब्याज लगाऊं भी तो कितना बैठेगा, 720 रुपए, हाँ है ना। यानी मेरा उत्तर अधिक से अधिक कितना हो जाएगा, 12,720, यानी 12,800 रुपए के आसपास आंसर आएगा। इससे बड़ा मेरा आंसर नहीं होने का। अब 12,800 के आसपास ना तो ये उत्तर है, ना ये उत्तर है, ना ये उत्तर है, केवल यही उत्तर है। दिन गिनने की जरूरत ही नहीं है, अदरवाइज तो आपको पूरे दिन गिनने पड़ते कि भाई जनवरी में कितने दिन पे ब्याज लगेगा, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में और जून में 8 दिन का लगना। फिर जोड़ोगे, फिर दिनों का हिसाब लगाओगे। ऑप्शन इतने आसान दे रखे, दिमाग दौड़ाओ, आगे बढ़ जाओ। भाई वैसे भी एक बात बताओ, अगर 12,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं तो 11,394 तो नहीं मिलने के, क्योंकि 12,000 तो देके ही आए, उस पर ब्याज और लगेगा नहीं, 12,000 प्लस पैसा आएगा। अगर मैं रेट 15% की जगह 10% भी मान लूं तो ब्याज 1200 बन जाएगा, है ना। 10% मान लू हद से हद, 1200 बन जाएगा, यानी 13,200 रुपए। जबकि ये तो महीने कम है, नहीं 13,200 से तो छोटा उत्तर लोगे, ये 13,200 से छोटा नहीं है ना, ये 13,200 से ये छोटा, तो यही आंसर है। ठीक है, दिन मत गिनो, टाइम को लॉजिक से तोड़ो। क्लियर है। चलिए मेरे दोस्तों, आज इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में देखें। थैंक यू आप सबको।